Morning students. Today I am going to discuss about electrostatic field. We have discussed about it that electrostatic field is present between the ionic compound. It is a kind of force of attraction present between the positively charged ions, that is cations and the anions. So this electrostatic field of an ion, the electrostatic field of an ion is non-directional. It is non-directional so that each positive ion attract various negative ions towards itself. जो पॉजिटिव कैटायन है उसकी सराउंडिंग में नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे एंड दिस डिपेंड ऑन द साइज और द radius of the respective ion. Similarly, suppose we have negative ion. This negative ion again attract various positively charged cations or positively charged ions. So these attraction of negative and positively charged ions resulting in formation of a three-dimensional geometrical arrangement. Three-dimensional geometrical arrangement, so that resulting in formation of a solid ionic crystal. Resulting in formation of solid ionic crystals. In this solid ionic crystal, the positively charged ions are present in alternate regular manner. Suppose हमारे पास कोई कैटायन है, उस कैटायन की सराउंडिंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसके लिए. सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड. नाउ इन सोडियम क्लोराइड, similarly each sodium atom is surrounded by various chloride ions and each chloride ion is again surrounded by various sodium ions. Clear? As a result, these two spaces or these two ions aggregate together, resulting in formation of a three-dimensional geometrical arrangement of the solid ionic crystal named as sodium chloride. In this way, the sodium ion is surrounded by 6 पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस. जब इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट स्टडी किया गया थ्री डायमेंशन में, तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो NaCl है इट विल एग्जिबिट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ऑक्टाहेड्रल मीन्स ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड सिमिलरली 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय अगेन 6 सोडियम आयंस. ठीक है, एक सोडियम के सराउंडिंग में एक 6Cl और 1Cl के सराउंडिंग में 6 सोडियम आयंस. तो जो आयंस प्रेजेंट होंगे यहाँ पर सराउंडिंग में वो सारे इक्वली स्पेस प्रेजेंट होंगे, सो दैट देयर विल एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ओवरऑल इफेक्ट. जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो स्पेसेस हमारे पास कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एंड दिस नंबर दैट इज कैटायंस surrounded by anion or the anion surrounded by the cation. This number is called as coordination number. CN number stands for coordination number. So what is coordination number? Coordination number of an ion may be defined as number of a positively charged ions present in the nearest neighbor अराउंड द आयोनिक क्रिस्टल. यानी कि सपोज हमारे पास ये सिंपल अरेंजमेंट दिखा रखा है हमने 1D या 2D में, ये 1 डायमेंशनल में अरेंजमेंट है. अगर हम इसको कंसिडर करते हैं स्पेसिफिक स्पेसिस को, तो इसकी सराउंडिंग में नियरेस्ट नेबर कितने जो इसको टच कर रहे हैं? 2. इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2. ऐसे ही जो सोडियम क्लोराइड है उसमें सोडियम को सराउंडिंग में 6Cl आयन टच करेंगे और 1Cl को 6 सोडियम आयन्स टच करेंगे. एंड इट कैन बी शोन in figure 4.1 here. These are the different ions present in the ionic crystals of NaCl. This is a three-dimensional arrangement crystal structure of sodium chloride, in which the gray color sphere represents the sodium ion and the pink color sphere represents the chloride ion. सपोज हम अगर इसको कंसिडर करते हैं सेंटर में सोडियम आयन है. अब चेक करना है इसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? 1 2 3 4. दिस इज 5th एंड हेयर दिस विल द 6. तो एक सोडियम के सराउंडिंग में यहाँ पर 6Cl आएंगे. ऐसे ही 4 एक्सटेंड कर दो. Cl के सराउंडिंग में Na कंसिडर करो 1 2 3 4. फिर बैक साइड में इधर से 5 और यहाँ से बैक साइड में 6. तो यहाँ पर भी 6 आयंस प्रेजेंट होंगे. तो इस नंबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. किस तरह से स्फीयर के अंदर कैटायंस और एनायंस के सराउंडिंग में पॉजिटिवली चार्ज आयंस
प्रेजेंट है। क्लियर। कल टॉपिक हमने क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। फर्स्ट 2 फैक्टर्स थे उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज़ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उस केस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। सो द थर्ड फैक्टर इज़ द लैटिस एंथैल्पी और द लैटिस एनर्जी। दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ, कुछ पॉइंट इसमें रह गए हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन requisite number of gaseous नेगेटिव एंड दी पॉजिटिव आयंस combines together। जो हमारे पास आयंस प्रेजेंट है गैशियस स्टेट में किसी भी स्पेसेस के, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज cations and negatively charged anions. These combines together. When these combine, energy will release and resulting in formation of 1 mole of ionic compound। हमारे पास ionic compound की formation होगी। This energy is called as lattice energy or simply lattice enthalpy. It can be shown as, suppose this is A positive cation present in gaseous state combines with B negative anion which is also in gaseous state. When these two combines, some amount of energy is रिलीज़। यहाँ पर क्या आएगी, हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी, रिलीज़ होगी। कब रिलीज़ होगी, जब यहाँ पर 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। इस आयोनिक कंपाउंड के अंदर इस तरह से स्पेसेस प्रेजेंट होंगे और आयोनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट यहाँ पर क्या आ जाएगी, सॉलिड। क्लियर। सो हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी of the compound. Higher will be the lattice enthalpy in the formation of ionic compound. In that case greater will be the stability of the compound। वो compound उतना ही ज़्यादा क्या होगा, more stable। Hence the compound will be formed easily and greater is the ease of formation। compound की formation भी वहाँ पर fast होगी। clear है। now as we know these are positively charged as present, so they have some force of attraction present between them। So the force of attraction present between these positively charged ions is directly proportional to the magnitude of charge, suppose Q1 and Q2, and is inversely proportional to the square root of distance between them। The force of attraction present between these ions in the formation of ionic compound is directly proportional to the magnitude of charge of the cation and anion and is inversely proportional to the distance between them। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा आयंस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, लेस। सपोज एक कैटायन यहाँ पर है, एनायन यहाँ प्रेजेंट है, अब यहाँ पर डिस्टेंस कैसा है, लार्ज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। दे विल नॉट फेस मच अट्रैक्शन टुवार्ड्स ईच अदर। अगर डिस्टेंस कम कर दिया है, ठीक है, अगर डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इन दैट केस दीज स्पेसेस विल फेस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हैंस देयर विल बी इजी फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड सच कंपाउंड पोजेस हाई लैटिस एंथैल्पी। क्लियर। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन द आयन, द फोर्थ फैक्टर, और वी कैन से दैट द सब फैक्टर्स इन द लैटिस एंथैल्पी। इसी के अंदर 2 मेन फैक्टर और कौन कौन से हैं, लैटिस एंथैल्पी इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट इज चार्ज ऑन द आयन and second is the size of the ion. It will depend on 2 factors. First is named as charge on the ion and second is the size of the ion. So greater is the charge, जितना चार्ज आयन के ऊपर ज़्यादा होगा, higher the charge, in that case greater is the force of attraction, greater is force of attraction, so in that case large amount of energy is released, so in that case large amount of energy will be released। ठीक है, अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है तो उस केस में कंपाउंड कैसा होगा, कंपाउंड इज said to be more stable। clear, I repeat this, the first factor of lattice enthalpy is charge on the ion। क्योंकि लैटिस एंथैल्पी के अंदर हमने आयंस को कंबाइन करवाया तो इसके अंदर भी 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। चार्ज, अगर चार्ज
स्पेसिफिक आयन के ऊपर ज़्यादा है तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि चार्ज अगर ज़्यादा हो चुका है इट मीन्स न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल में अट्रैक्शन ज़्यादा शो करेंगे। इन दैट केस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, क्योंकि इस हाई चार्ज के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ज़्यादा होगा, उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। सो इफ़ वी हैव डिफरेंट ionic compounds such as NaCl, CaCl2 and MgO. क्वेश्चन है which of the following will possess highest lattice enthalpy। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाई, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। कैटायन 1 पॉजिटिव, चार्ज स्मॉल है तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, स्मॉल। एनायन के ऊपर भी चार्ज 1 नेगेटिव, स्मॉल है। कैटायन 2 पॉजिटिव, एनायन 1 नेगेटिव। एक चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, एक में वैल्यू क्या है, लेस, तो ये भी कैसा होगा, लेस स्टेबल। एनर्जी यहाँ पर भी कम आएगी। अब यहाँ पर चार्ज 2 पॉजिटिव, यहाँ पर भी चार्ज कितना, 2 नेगेटिव। तो कैटायन और एनायन का दोनों के केस में जो चार्ज है, हायर द चार्ज ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होंगे, तो इस केस में वैलेंसी नहीं, लैटिस एंथैल्पी कैसी आएगी, हाई। सेकेंड फैक्टर इज़ द साइज ऑफ आयन। Second factor is the size of ion. As we know, higher charged species are rare. जो स्पेसेस कैसे होते हैं, हाईली चार्ज्ड, वो स्पेसेस की फॉर्मेशन कैसी होती है, रेयर होती है। वाई, बिकॉज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन द आयंस इज़ नाउ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर किसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को। क्लियर है पॉइंट ये। नेक्स्ट है, इफ़ द साइज ऑफ आयन इज़ लार्ज, इफ़ साइज ऑफ आयन इज़ लार्ज, अगर आयन का साइज कैसा है, लार्ज, इन दैट केस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस विल आल्सो बी मोर। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। अगर आयन का साइज़ लार्ज है, सपोज़ हमारे पास Cl नेगेटिव लिया है हमने, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। अगर हम सिंपल लेते हैं Cl और Cl नेगेटिव, तो किसका साइज़ ज़्यादा है, Cl नेगेटिव का, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया है वो थोड़ा सा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये शेल है लास्ट वाली, ये अट्रैक्शन छोड़ के थोड़ा सा एक्सपेंड होके बाहर आ जाएगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अभी हमने एक पॉइंट किया था, अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो जाएंगे, लेस। देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। क्लियर है ये। सो इन केस ऑफ स्मॉल आयन, ये था हमारे पास लार्ज आयन, अगर साइज़ ज़्यादा है आयन का तो डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़। सेकंड केस है, इफ़ साइज़ ऑफ आयन इज स्मॉल, अगर साइज़ स्मॉल है, इन दैट केस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीजेज। अगर डिस्टेंस डिक्रीज़ हो गया है, इन दैट केस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीजेज। क्लियर है। सपोज हमारे पास दो स्पेसिस है NaCl एंड NaBr। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हायर लैटिस एंथैल्पी। कर लोगे इसको, ये कैटायन सेम साइज को छोड़ दो, Cl Br, किसका साइज़ लार्ज होगा, Br नेगेटिव, क्योंकि Cl और Br जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़। तो कैटायन आयन का साइज़ लार्ज है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीजेस। तो उसके हिसाब से लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो NaCl विल पोजेस हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी। और भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके अंदर, वो खुद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। वी विल डिस्कस इट टुमारो।